Hello students, good morning. Students, today is 10th November 2020. Your chapter 4th business services was going on. In the last class, I have started the communication services. In this, I have taught to you about the postal services. Okay. So today I want to continue it. So today's postal services relates on the postal saving schemes. Okay. So look here, there are the different types of the postal saving schemes. Postal saving schemes. Okay, in the first thing that will be related on the RD, recurring deposit account. In the short form you can tell it RD account or RDA. Okay, you know about that. I have already taught you about the RD account that has been opened by the bank also. Bank has been also provided the services related from the recurring deposit account. Post office has been also provided the same types of the services regarding the RD account. Okay, so here you will write post office recurring deposit account. Post office recurring deposit account is a banking service offered by Department of Post. यानी पोस्ट ऑफिस के थ्रू होता है. सो दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया at all post office counters in the country. It means that about the facilities has been provided by the each and every types of the post office's account. Okay, so same thing will be related from the recurring deposit account can be opened by any individual person or jointly. Okay, that will be related from the more than 18 years. Then here you will note it down some points also. One point, the maximum amount, so पहले minimum लिखिएगा. The minimum amount, maximum में no limit है. So the minimum investment in a post office RD account is ₹10. यानी आप 10 रुपए से भी RD का अकाउंट ओपन कर सकते हैं. एंड देन in multiples of ₹5. You know about the RD account, याद है आपको? यानी आप मंथ बाय मंथ उतनी अमाउंट आप डिपॉजिट कर सकते हैं. सो आप क्या मिनिमम 10 रुपीज से स्टार्ट करके अपने क्या RD अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं. आप मिनिमम 10 रुपीज पर मंथ. ओके, और दैट इज द रेट्स ऑन द मल्टीपल ऑफ 5 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. टाइम ड्यूरेशन क्या होगा इसका? 5 years. There is no prescribed upper limit on the investment. यानी क्या कोई भी अपर लिमिट नहीं है. मैक्सिमम अमाउंट, देयर इज नो मैक्सिमम अमाउंट दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट ऑफिसेज एंड द इंटरेस्ट हैज बीन पेड बाय दैट टाइप ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑन द बेसिस ऑफ द क्वार्टरली. Clear? So that is the relates from the RD account that has been provided the facilities relates from the post offices. Now next thing that is the most important, national saving certificate. National saving certificate. In the short form it is called NSC. National saving certificate facilities has been also provided by the post offices, and the main thing is related from the NSC. It is totally exempted from tax. It means there is the limit. अगर आप 1 lakh rupees per annum per year deposit करते हैं, so as per the section 80C of the income tax act, there is the no tax. It is totally exempted. यानी 1 लाख रुपीज तक अगर आप NSC परचेज करते हैं हर साल, सो आपको 1 लाख रुपीज पर कोई भी अमाउंट का टैक्स नहीं देना होगा. वाइल इन RD अकाउंट यू विल पे द टैक्स. आप अगर RD ओपन करें, जब आपकी RD मैच्योर होगी तो विद इंटरेस्ट के साथ आपको जितनी अमाउंट मिलेगी, सो आपको इंटरेस्ट के अमाउंट पर आपको टैक्स पेमेंट करना होगा. और RD अकाउंट अगर आपके क्या टैक्स लिमिट के बाहर आ जाता है तो भी आपको टैक्स देना है. बट इन द NSC देयर इज नो टाइप्स ऑफ द टैक्सेस. देयर इज द एग्जेम्पशन ऑफ द टैक्सेस इफ यू हैव डिपॉजिट 1 लाख रुपीज पर एनम. ओके, 1 लाख से आप ज्यादा डिपॉजिट करेंगे देन यू विल पे द अमाउंट ऑफ द टैक्स. ओके, सो 1 लाख तक एग्जेम्प्टेड है. सो हियर यू विल राइट नेशनल
savings certificates are certificates issued by Department of Post, comma, Government of India, and are available at all, सेम एज लाइक, जैसे आपका आरडी अकाउंट था, सेम उसी तरह का हर काउंटर पर पोस्ट ऑफिस की अवेलेबिलिटी होगी, एट ऑल पोस्ट ऑफिस काउंटर्स इन द कंट्री. क्लियर? There is some points you can also open it with the help of any type of the representative. आप किसी पोस्ट ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू या किसी एजेंट के थ्रू आप इसे ओपन करा सकते हैं. ओके, एनएससी पॉइंट में थोड़ा लिखा दे रहे हैं इसमें. सो हियर वी लेट एनएससी आर इशूड इन डिनोमिनेशंस ऑफ ₹100 यानी ₹500, ₹1000 ही आप जो डिपॉजिट करते हैं आप 100 से लेकर के 500, 1000, 5 लाख एंड 5000 एंड 10,000 तक आप कर सकते हैं. ₹1000, ₹5000 एंड आपको ये पता ही हमने मैक्सिमम लिमिट आपको क्या बताई, 1 लाख तक एग्जेम्प्टेड है, एंड ₹10,000 फॉर अ maturity period of 5 years. एनएससी को आप 5 years के पहले कैश नहीं करा सकते. इफ यू हैव रिक्वायर्ड मनी, अगर आपको कोई मनी की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, सो इन द एनएससी यू कैन टेक द लोन. आप एनएससी को मॉर्गेज करके, गिरवी रख करके, बंधक पर रख करके आप उस पर लोन ले सकते हैं. ठीक है? देयर इज नो प्रेस्क्राइब्ड, कोई इसकी मैक्सिमम प्रेस्क्राइब्ड लिमिट नहीं है, लेकिन आप 1 लाख तक एग्जेम्प्टेड हो गए टैक्स के. 1 लाख से अगर आप ज्यादा डिपॉजिट करते हैं, सो यू विल पे द अमाउंट ऑफ द टैक्सेस, बट अपर लिमिट हैज नॉट बीन डिसाइडेड. ओके, देयर इज नो प्रेस्क्राइब्ड अपर लिमिट ऑन इन्वेस्टमेंट. ओके, एनएससी कैन बी केप्ट एज कोलेटरल सिक्योरिटीज टू गेट लोन्स फ्रॉम बैंक्स. एनएससी पर क्या आपको कोलेक्टरल सिक्योरिटी एंड मॉर्गेज रख करके, गिरवी रख करके लोन भी मिल सकता है. सेकेंड पॉइंट आई वांट टू टेल टू यू, इन्वेस्टमेंट इन एनएससीज अप टू ₹1 लाख, ये हम लिख दे रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा, 1 लाख रुपीज तक पर एनम. अगर आपने 1 लाख रुपीज डिपॉजिट किया तो पर एनम ₹1 लाख पर एनम qualifies for income tax rebate under section 80C of Income Tax Act. इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग एनएससी पर 1 लाख रुपीस का एग्जेम्पशंस भी प्रोवाइड कराया जाता है. ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? रिमेंबर, एनएससी आप 5 years के पहले कैश नहीं करा सकते. यू कैन टेक द लोन ऑन द एनएससीज ओनली. क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड फ्रॉम द पोस्टल सर्विसेज सेविंग इज किसान विकास पत्र. ओके, इन द शॉर्ट फॉर्म यू कैन ऑल्सो टेल इट KVP. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द purpose of the investment with the help of the post offices. You can write it, Kisan Vikas Patra is a safe and long term investment option backed by the government of India. Which provides interest income
सिमिलर टू बॉन्ड्स, यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसे होते हैं, सेम एज इट इज इट विल बी प्रोवाइडेड द इनकम टू बॉन्ड्स. ओके. केवीपी यानी किसान विकास पत्र इज बेनिफिशियल फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर अ सेफ एवेन्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विदाउट द प्रेसिंग नीड फॉर अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम. यानी ये ऐसे लोगों के लिए सुटेबल है जो अपनी क्या पैसे को सेफ रखना चाहते हैं विद द पर्पस ऑफ द गुड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. ओके. एंड रेगुलर इनकम को जिनको क्या सोर्स नहीं बनाना है. Here it has not been given in the book, that will be related from the duration, but remember the duration of the Kisan Vikas Patra is 9 years, and while I have already told to you the duration of the NSE is 5 years. 9 years के पहले आप किसान विकास पत्र को कैश नहीं करा सकते हैं एंड 5 years के पहले आप NSE को कैश नहीं करा सकते हैं. बट सेम थिंग विल बी रिलेटेड फ्रॉम द KVP पर भी आप मॉर्गेज करके या कोलेटरल सिक्योरिटीज की तरह गिरवी रख करके आप उस पर भी लोन ले सकते हैं. सो हियर यू विल राइट KVP, it means Kisan Vikas Patra is beneficial for those who are, it is also exempted from tax. 1 लाख रुपीज तक ये भी आपका टैक्स से exempted होता है as per the section 80C of Income Tax Act. Okay, so for a safe avenue of investment without the pressing need for a regular source of income. Clear students? It is also as like a NSE की तरह इसमें भी सारी फैसिलिटीज मिलती है, बस ड्यूरेशन इसका जाता है. NSE में 5 years है, इसमें कितना है 9 years है. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट अकाउंट इज बेस्ड ऑन द PPF. PPF मींस पब्लिक प्रोविडेंट फंड. इन द शॉर्ट फॉर्म यू कैन ऑल्सो टेल इट PPF. PPF फैसिलिटीज हैज बीन ऑल्सो प्रोवाइड बाय द बैंक ऑल्सो. PPF की फैसिलिटीज बैंक भी प्रोवाइड कराते हैं. Okay, and that type of the facilities has been also provided by the post offices. So here you can write it, individuals who are residents of India are eligible to open their account अंडर द PPF. यानी क्या, जो भी हमारे इंडिया के रेसिडेंट हैं वो PPF अकाउंट ओपन करा सकते हैं. इट मे ऑल्सो बी ओपन अंडर द नेम ऑफ अ माइनर मीन्स जो 18 ईयर से कम का होता है, बाय हिज लीगल गार्जियन. यानी ये कोई माइनर के नाम से भी आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या आपको लीगल गार्जियन बनना होगा, यानी आपके पेरेंट्स या गार्जियन इसको ओपन करा सकते हैं. Here students, I want to written down some points so you can also write it here. Investment in PPF are recurring in nature and run over a 15 years पीरियड. यानी क्या, आपका PPF अकाउंट क्या होता है, रिकरिंग नेचर का होता है. यानी आप इसमें टाइम बाय टाइम एज पर योर फैसिलिटीज अवेलेबल, एज पर योर इजीनेस, यू कैन डिपॉजिट योर मनी इन द PPF अकाउंट. बट द ड्यूरेशन ऑफ द अकाउंट इज 15 years. यानी क्या, आप इसका जो कैश रिसीव करेंगे वो 15 ईयर से ज़्यादा पहले आप रिसीव नहीं कर सकते. दैट अमाउंट यू विल रिसीव आफ्टर 15 ईयर्स. हाँ, सरेंडर करके अगर आप चाहें सो आफ्टर 3 ईयर यू कैन सरेंडर इट एंड रिसीव द नॉमिनल अमाउंट. अगर आप PPF अकाउंट को सरेंडर करते हैं सो आपको नॉमिनल अमाउंट रिसीव होती है, यानी सिर्फ नाम की. इट मीन्स एज आई हैव लिसन अबाउट इट, हमने इसके बारे में सुना हुआ है. जैसे अगर आपने 3 ईयर्स तक लगातार PPF अकाउंट आपने चलाया है, ठीक है, सो आप 3 ईयर्स के बाद अगर आप उसे सरेंडर करते हैं सो ओनली यू विल रिसीव द 10% ऑफ द अमाउंट दैट यू हैव डिपॉजिट.
डिपॉजिट, जितनी आपने अमाउंट डिपॉजिट करी उसका सिर्फ आपका 10% अमाउंट मिलेगा आफ्टर 3 years. सो इफ यू हैव ओपन दैट टाइप ऑफ द अकाउंट, सो इट इज नेसेसरी टू रन टिल द 15 years. अगर आपने ये अकाउंट ओपन किया तो ये कोशिश करिए कि आप 15 years तक इसे रन कराएं. ओके. एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन are mandatory. Annual contributions are mandatory to keep the PPF account active. The minimum and maximum investment amounts are pegged. यानी आपकी मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट जो है वो पैक्ड है एट ₹500. यानी आपको मिनिमम 500 हर साल जमा करना है पर एनम, एंड मैक्सिमम आप 1 लाख रुपीज तक जमा कर सकते हैं. मैक्सिमम ₹1 लाख पर एनम respectively. Okay. It is also exempted as per the section 80C. Okay, so here you write investment in PPF account, PPF up to ₹1 lakh per annum qualifies for income tax. It means that is totally exempted from the tax also. Income tax rebate under section 80C of Income Tax Act. 80C of Income Tax Act. It means आप 1 लाख रुपीज का एग्जेम्पशंस ले सकते हैं एज पर द सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. सो एज पर माई थिंकिंग इट इज बेनिफिशियल फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. इफ यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, देन यू कैन रिसीव द good interest amount on such type of the investment. Okay, and that type of the facilities has been also provided the bank also. ये facilities अभी हमने आपको बताया, अभी ये बैंक भी provide कराते हैं. Okay, the last saving facilities that has been provided by the post office, that is called monthly income scheme, that is MIS. In the short form it has been called MIS. Listen students, it is beneficial for those persons who wants to earn regular income on month basis. यानी ये उन persons के लिए अच्छा है जो अपनी इनकम को क्या मंथ बेसिस पर गेन करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं. ओके, देन दे हैव इन्वेस्टेड देयर मनी इन अ बल्क. एक फिक्स अमाउंट आप वो डिपॉजिट कर देते हैं बैंक पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में, एंड देन मंथ बाय मंथ उन्हें क्या उस अमाउंट से इंटरेस्ट की इनकम रिसीव होती रहती है. यानी मंथली इसमें इनकम रिसीव होती रहती है. सो हियर यू राइट द पोस्ट ऑफिस monthly income scheme provides for monthly payment of interest income to investors. यानी कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको इसमें क्या मंथली इनकम रिसीव होती रहेगी. Points you will also note it down here. Point 1, any individual can open that account as like a jointly or single. ये तो आप जान ही रहे हैं. So here the minimum investment is ₹1,500 for both single और ज्वाइंट अकाउंट्स. अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो भी 1500 मंथली है. इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, नॉट मंथली. मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, दैट इज रिलेटेड फ्रॉम द एज लाइक अ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. और अगर ज्वाइंट अकाउंट है सो तब भी हमारा क्या 1500 है. द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट
the maximum investment for a single account is rupees 4.5 lakh and rupees 9 lakh for a joint account यानी क्या, अगर सिंगल इन्वेस्टमेंट करना है तो मैक्सिमम आपका 4.5 है और मैक्सिमम सिंगल पर, यानी अगर कोई अकेला व्यक्ति जो अकाउंट ओपन कराता है, इन्वेस्ट करता है, सो 4.5 लाख की लिमिट है एंड ज्वाइंटली में 9 लाख की लिमिट है. द ड्यूरेशन ऑफ MIS इज 5 years. जो ड्यूरेशन है वो क्या है इसकी, 5 years है. ओके, इट इज मीन फॉर दोज इन्वेस्टमेंट, हमने आपको क्या बताया, दैट इज रिलेट्स ऑन द रेगुलर इनकम. सो हियर यू विल राइट इट इज मीन्ड फॉर दोज इन्वेस्टर्स who wants to invest a some amount initially and earn interest on a monthly basis for their livelihood. यानी क्या हो सकता है, कई बुजुर्ग हों, ठीक है, या कोई ऐसे पर्सन हो जिनकी कोई इनकम का सोर्स ना हो लेकिन उनके पास कैश के अमाउंट ज्यादा हो, सो दे कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन सच टाइप ऑफ द स्कीम एंड देन आफ्टर दैट देन दे कैन अर्न फॉर देयर लिवलीहुड. ओके, नाउ लास्ट पॉइंट इज MIS is meant to provide a source of a regular income on a long term basis, full stop. So this scheme is more beneficial for रिटायर्ड पर्सन. अभी हमने आपको बताया बुजुर्गों के लिए या रिटायर्ड पर्सन के लिए जिनकी कोई इनकम का सोर्स नहीं है, सो दैट इज बेनिफिशियल फॉर दैट टाइप ऑफ द पर्सन. सो स्टूडेंट्स, relates on the communication services, I have already explained to you about the post offices. Okay, in the next class I will also explain last topic of this chapter, that will be telecom services, and maximum students know about the telecom services. maximum क्या सभी students जानते होंगे. So that topic I will explain in the next class. Okay students, in the mean duration if you have any doubt, then students you can also ask the query with me. Okay.